So what I have mentioned here, that special characteristics of plants and animals that enables that plants and animal to be successful under the prevailing set of environmental conditions are called adaptation. So already we had discussed the environmental factors in details in my previous lecture, and as you know now that environmental factors are of two types: abiotic and biotic, non-living and living. Getting my point? And these abiotic and biotic factors are responsible for such modification. Say for example, we had discussed about the light, we had discussed about the water, we had discussed about the temperature, we had already discussed about the winds. All these are the abiotic factor, humidity. Okay. All these are the abiotic factors. Soil, edaphic factor, microorganisms, plants, animals, these are the living factors, those who are in the surroundings. So why the modification? Because when you move over the planets, we find change in the temperature. Temperature is not uniform all across the world. Okay, over the planet Earth, temperature varies. Even if we move in the water, the surface temperature is comparatively high in comparison to the deep water. So within the water, water is a habitat, but in that water, what you find that when you move towards the depth of the water bodies, what you find, the temperature started declining, and in the declining temperature, all the species cannot survive. So what we find, that diversity of the species, and in that diversity, what you find, modification, different modification and adaptation in the plants and animals. Getting my point? So that's why what I have mentioned, that some set of conditions you find out. अगर ओशियन में जाओगे तो मैंने आपको ओशियनोग्राफी में बताया था कि सैलिनिटी वेरीज करता है, सी टू सी सैलिनिटी वेरी करता है. फिर मैंने एक और कंडीशन बताया था कि जहाँ पर नदियाँ जाकर ड्रेन करती हैं रिवर्स में, तो वहाँ फ्रेश वाटर्स जाकर गिरते हैं, नदियों से मीठा पानी जाकर खारे पानी में मिला, तो वहाँ सैलिनिटी का अमाउंट वेरी करेगा. सो व्हेन द सैलिनिटी फ्लक्चुएट एंड वेरीज, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, उससे आपको क्या दिखाई देगा, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशंस इज देयर इन द एनिमल्स, दोज हु आर सर्वाइविंग इन द वाटर वेयर द सैलिनिटी इज लेस. Where the salinity is more, the what you find a different adaptation, because salt condition में grow करने के लिए अलग physiology चाहिए और fresh water में grow करने के लिए other physiology चाहिए. तो आप मछलियों को भी देखेंगे जो ओशियनिक वाटर से मरीन फिशेज निकाली जाती हैं, उनमें डिफरेंट एडेप्टेशन है, और फ्रेश वाटर फिशेज लोगे तो उसके अलग मॉडिफिकेशन होंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि सेट ऑफ जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो डिफरेंट है, और उसमें सरवाइव करने के लिए उन्होंने अलग एक चेंजेस या मॉडिफिकेशन लिया है. मॉर्फोलॉजिकली आपको सिमिलर दिख सकते हैं, यानी मछलियों का शेप आपको एक ही दिख सकता है, या उसके ऊपर जो स्केल्स दिख रहे हैं वो आपको सिमिलर दिख सकते हैं, या फिर उसके फिन्स हैं उसको ट्रैवल करने के लिए, मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए, वो आपको सेम दिख सकते हैं. बट आपको इंटरनल फिजियोलॉजी जब स्टडी करोगे तो उसमें आपको डिफरेंसेस दिखाई देगा. गेटिंग माई पॉइंट? So we are going to learn this kind of adaptation. So in general, what is adaptation? That a special kind of characteristics develop within the plant and animal to survive in a specific condition is known as adaptation. In another word, we can also define the adaptation. So what I have mentioned here, which is, you can understand better now what I have discussed in my introductory lecture, that adaptation is a behavioral, physiological and morphological or any other quality of living organism that help them to survive and replicate in the living space. So
अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि व्हेन यू मूव टू द डेजर्टिक एरिया, जब आप डेजर्टिक एरिया में जाते हो तो वहाँ पर एनिमल्स जो है वो डे लाइट को अवॉइड करता है, क्योंकि द टेम्परेचर इन द डे इज़ वेरी हाई एंड दे आर मूव इन द नाइट, दे आर बेसिकली नॉक्चर्नल। तो वो बिहेवियरल चेंज है, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस ले आया उन्होंने, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है। What are the physiological changes when you look at the rate of respirations in the xerophytic plants? That is different. When you look at the rate of respiration in aquatic plant, that is different. That is physiological adaptation. यानी physiology body processes में change किया. When you look at the organism, those who are living in a dry desertic area, उनमें different type of enzymes secrete करते हैं to restrain the stresses, heat stress को काउंटर करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम बॉडी से सिक्रीट करते हैं। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड द प्लांट्स दोज हु आर लिविंग इन द कोल्ड एरियाज, ओके, वहाँ पर कोल्ड रेसिस्टेंस जीन होगा, उसको सर्वाइव करेंगे, वहाँ अलग मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी यानी कि रूट स्टेम और लीव्स को देखोगे जो आपको अपीयर होते हैं आउटसाइड से, उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन दिखेगा। जैसे व्हेन यू लुक एट द कैक्टाई, कैक्टस का पौधा देखिए, द थॉर्न्स आर देयर, ओके, देयर स्टेम्स आर वेरी थिक टू रिस्टोर वाटर, वहाँ सारा वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है। लेकिन वही हाइड्रोफाइट्स जो कि वाटर में ही रहते हैं, तो लीफ को टच करोगे, व्हेन यू टेक द लीफ ऑफ निलम्बो न्यूशिफेरा, दैट इज द लोटस, कमल का लेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, लीफ इज वेरी व्हाट स्मूथ। क्यों? क्योंकि उसके लीफ के ऊपर ना वैक्स की कोटिंग होती है, मोम की एक परत होती है। क्यों? क्योंकि उसको पानी में रहना है, और जानते हो वैक्स जो होता है वाटर रेपेलेंट होता है। वैक्स इज अ फैट विच इज अ वाटर रेपेलेंट, उसको पानी में रहना है तो वो सड़ जाएगा। तो उसने क्या एडेप्टेशन किया, एक वैक्स की कोटिंग हो गई। इसीलिए आप एक्वेटिक प्लांट को टच करेंगे, जैसे जाके देखना लिली है या जिसको कुमुदनी कहते हो, निम्फिया, निलंबो, तो इनके क्या होंगे, लीफ आपको बहुत स्मूथ टच करने पे नजर आएंगे। रीजन यही है। पीटियोल्स देखोगे, स्टेम्स देखोगे, उसको कट करोगे तो उसमें क्या तुम्हें दिखाई देगा, उसमें तुम्हें दिखाई देगा कि हॉलो है। क्यों? क्योंकि हॉलो होने से उसमें एयर फिल्ड होता है, और एयर फिल्ड होने से वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। अगर वो हॉलो नहीं रहता, एयर फिल्ड नहीं होता, तो वो पानी में समर्ज होता, कॉन्टिन्यूसली सर्वाइव नहीं करता, सड़ जाता, गल जाता। तो उसने अपना मॉडिफिकेशन वैसे किया। डेजर्टिक एरिया में जाओगे, प्लांट्स को अपरूट करोगे तो उनकी रूट्स बहुत लंबी होती है, नीचे तक जाती है, क्योंकि वाटर स्कार्सिट एरिया है, तो उनको वाटर को क्या करना है, एब्जॉर्व करना है, तो वो काफ़ी नीचे तक उनको रूट्स ग्रो करना होता है टू फाइंड आउट द वाटर, बिकॉज इन अ डेजर्टिक एरिया द सॉइल इज पोरस, वाटर रिटेंशन एबिलिटी इज़ वेरी लो। पानी डालते जाओ वो नीचे ही चलता चला जाएगा, क्योंकि पोर साइज बड़े हैं। तो ऐसा मॉडिफिकेशन उन्होंने कर रखा है। तो आपको दिखाई भी देगा, थॉर्न्स दिखाई देंगे, कांटे दिखाई देंगे, क्योंकि लीफ इज कन्वर्टेड इनटू थॉर्न टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर इन द ट्रांसपिरेशन, बिकॉज लीफ जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। एक तो वो वाटर स्कार्स एरिया में, ऊपर से लीफ ज़्यादा होंगे, स्टोमेटा ज़्यादा होगा, तो फिर पौधे सर्वाइव नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या कर लिया, लीफ को ही मॉडिफाई कर लिया थॉर्न में। अब वो थॉर्न है, स्टोमेटा भी नहीं है। तो ये सारे मैकेनिज्म हैं जिससे वो क्या करते हैं, ड्राउट को इवेड करते हैं, ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। सो वी फाइंड सच काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू this this definition of the adaptation. Now I will start my topic with the hydrophytes. हम लोग सबसे पहले एडेप्टेशन हाइड्रोफाइट्स में पढ़ेंगे। हाइड्रोफाइट्स आर सच प्लांट्स दोज हु आर कंप्लीटली और परमानेंटली लिव इन वाटर। ऐसे प्लांट जो हमेशा पानी में ही ग्रो करेंगे, हम उसे हाइड्रोफाइट्स कहेंगे, ठीक है ना। सो हाइड्रोफाइट्स हैविंग द डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स यू मस्ट look at. The hydrophytes are of 5 types. Okay, so again you have to understand these types of hydrophytes. First is the free floating hydrophytes. Free floating.
When you move along the pond area, okay, or in any lakes or streams, pools, what you find? Some water is floating over the, some plants are floating over the water, फ्री फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे हाथ लगाओ और वो आपके हाथ में आ जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अभी आप एशकम देखते हो, पॉन्ड्स में जाओगे तो ऐसे, या छोटे छोटे पौधे देखेंगे, अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको, तो वो आपके हाथों में आ जाएंगे क्योंकि वो फ्री फ्लोट होते हैं, उनमें रूट्स डीपली रूटेड नहीं होते, रूट्स या तो एब्सेंट होते हैं या रूट्स होते भी हैं तो फाइब्रस फॉर्म में बहुत छोटे होते हैं और वो पानी में तैरते रहते हैं, ठीक है। दूसरा है रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद द फ्लोटिंग लीव्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स मड्स में होती है, रूटेड हाइड्रोफाइट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी लीव्स है वो सरफेस पर होगी, पानी के ऊपर तैरती रहेगी, तो इसीलिए क्या वर्ड लिखा है, रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद द फ्लोटिंग लीव्स। नाउ व्हेन यू लुक एट थर्ड, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, these are the hydrophytes, these are the aquatic plants which are submerged, means beneath water, within the water रहते हैं, ठीक है ना, under the water they are living and they are adapted to survive under water. What they are known as submerged plant, submerged hydrophytes they are, okay. Now लेकिन इनमें जो है, इनके और इनके अंदर एक डिफरेंसेस क्या है कि इनकी रूट्स जो होती है वो मड में नहीं होती। यहाँ फिर लिखा है रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, इनकी रूट्स जो होगी वो मड में होगी। दे आर ऑल्सो सबमर्ज्ड प्लांट बट देयर रूट्स आर विद इन द मड्स, वो मड में होगा, कीचड़ में होगा, जमीन में होगी उनकी जड़ें। तो दो तरह के सबमर्ज्ड प्लांट है, एक तो फ्लोट करते रहते हैं पर पानी के अंदर होते हैं, दूसरे होते हैं जिनकी रूट्स मिट्टी में होती है, मड में होती है। एंड रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, some hydrophytes, what you observe that their stems and leaves are above the water, emergent, पानी के ऊपर होंगे लेकिन उनकी रूट्स मड में होगी, ठीक है ना। so that kind of plants are known as rooted emergent hydrophytes. Getting my point? Yes or no? समझ आया। अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स में क्या पढ़ेंगे, बेसिकली द डेफिनेशंस एंड फ्यू एग्जांपल्स of all these categories. Okay, so let's see. First, I would like to suggest here about the free floating hydrophytes. What I have mentioned here, that they remain in contact with the water and air. So the word is contact because free floating hydrophytes. So water is always in contact with the water as well as the air. Okay. Now, but not soil. तो इनके रूट्स इधर एब्सेंट, और मैंने कहा कि अगर हैं भी तो बहुत स्मॉल है, फाइब्रस है, तो ये सॉइल के कांटेक्ट में ये रहते नहीं है, ये फ्लोट करते रहते हैं पानी के ऊपर, तो फ्री फ्लोटिंग वर्ड्स है ही इसका। दे फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस एंड द लीफ इन सम आर वेरी माइन्यूट। लीव्स का मॉडिफिकेशन देखो, मैंने कहा रूट इधर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट द रूट इज वेरी स्मॉल, लार्जली इट इज एब्सेंट। लिप्स आर वेरी माइन्यूट, मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखिए कि इनके लिप्स बहुत छोटे होंगे, ठीक है। वाइल इन अदर क्वाइट लार्ज, लेकिन कुछ होंगे जो लार्ज होंगे, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसका, वुल्फिया, लेमना, एजोला एंड इकॉर्निया। So what is the example? Wolffia, lemna, okay, Eichhornia and Azolla. So Eichhornia is also a plant, Azolla is also a plant, lemna is also a plant, okay, these are the hydrophytes. Wolffia is also a plant and they are what? They are free floating hydrophytes, okay। ये वाटर के ऊपर मॉडिफिकेशन मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया कि इनमें रूट्स इधर एब्सेंट होंगे और वेरी स्मॉल और माइन्यूट, लीफ में भी वेरी स्मॉल और माइन्यूट, एज वेल एज आप क्या देखोगे कि कभी कभी लार्जर होंगे। तो हमने इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये नेम में से एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 2 to 3 नेम्स, so you can be comfortable। और अगर इसमें देखा जाए तो वुल्फिया, लेमना, ठीक है ना,
एंड कॉर्निया, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स, सो यू मस्ट ट्राई टू कीप इन माइंड. नाउ व्हेन यू लुक एट नेक्स्ट, the rooted hydrophytes with the floating leaves, means they have the roots, of course the name is itself explained that their roots are fixed in the muds. That's why the word is rooted hydrophytes, but the leaf is floating on the water. But the leaves having the long petioles, the petioles attach the leaf to the stem. Petioles से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं लीफ किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू. So that structure which connect the leaf to the stem is known as petiole, and petiole is large. ठीक है ना, यहाँ लिखा है long petioles which keep them floating on the water surface, and that's why their leaf is floating on the water surface. So leaf is floating, leaf is emergent over the water, it is floating over the water. Floating means always in contact with the water. इमर्जेंट जब कहेंगे तो वो ऊपर होगा, फ्लोट कर कह रहा है इसका मतलब वाटर के कांटेक्ट में. देयर इज कांटेक्ट विद द वाटर एज वेल एज एयर. सो लीफ इज इन कांटेक्ट विद द वाटर एज वेल एज एयर बिकॉज लीफ इज फ्लोटिंग. व्हाई? बिकॉज दे हैव लॉन्ग पेटियोल. पेटियोल कनेक्ट द लीफ विद द स्टेम. अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. द रिमेनिंग प्लांट एक्सेप्ट द लीव्स रिमेन इन वाटर. लीफ को छोड़कर बाकी हिस्से प्लांट के कहाँ हैं, पानी के अंदर हैं, और उसकी रूट्स भी है और रूट्स मड में है. एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, नीलंबू. नीलंबू किसे कहते हैं, लोटस को कहते हैं. तो लोटस अगर आपने देखा है तो आप देखेंगे कि उसके जो आप निकालोगे लीफ, तो लीफ के नीचे लंबी सी डंडी होगी, उसी डंडी को पेटियोल कहते हैं. अगर लोकल आम भाषा में बात करें तो वही पेटियोल है. और उसको मैंने कहा कट करके देखोगे तो वो हॉलो होगा, अंदर में क्या होगा, हॉलो स्ट्रक्चर होगा. क्यों? क्योंकि उस पेटियोल में एयर फिलअप होता है जिसके कारण वो फ्लोट करते रहते हैं पानी के ऊपर. तो दैट इज निलंबो, निम्फिया, ट्रैपा. These are an example of the plants, those who are rooted floating hydrophytes. Their roots are in mud, but the leaves are floating on the water. The leaves are in contact with the water. Try to understand. Now next, what I have mentioned here, that submerged floating hydrophytes. Submerged floating, but their roots is not under the water. Try to understand. So they remain contact with the water, okay, and being completely submerged and not rooted. These are the two important terms you should keep in mind, because I am talking about the submerged hydrophytes. But here it is the submerged hydrophyte, but rooted submerged hydrophyte. So there is a differences between both these two. Okay, these are completely submerged in the water and not rooted in the mud. This is the characteristics. Their stems are long and leaves generally small. Okay. What is the example? Ceratophyllum, Utricularia, Nasas. These are the varieties of the hydrophytes which is completely submerged within the water. Okay, under the water. So they are submerged in water. Now the next category is, when you look at, they are also the submerged plant, but they are rooted. They having the roots. So what I have mentioned, that the hydrophytes like hydrilla. Hydrilla is a name of plant. Again, what is important, you have to keep in mind, as I have said, one or two examples at least, so you can mention when you have to write adaptation in the plants. Okay, hydrilla is a name of a plant. Okay, Potamus gaten is a name of the plant. Okay, Isoetes vallicinaria. So at least remember two names. Okay, minimum two names to as a representative species of this categories. Okay, that remain completely submerged under the water. So they are also completely submerged under the water, but they are rooted. That make it different from this. Okay,
So here I had again mentioned this species. Now the last category of the hydrophytes are emergent. Their stems are short, okay, and appear over the water. So now they grow in the shallow waters, and these are the hydrophilous forms which although require the excess of water, but their shoots are partially or completely exposed to the air. तो क्या बोला कि इनके जो shoots हैं, the stems and the leaves are emergent over the water, they are in air, but they needs water to survive, and that's why their roots are in the muds, and the lower part of their body are in the water, but their shoots are emergent and in the air. Roots is completely underwater, fixed in the mud or the soil. So such kind of aquatic plant are known as what? Rooted emergent hydrophytes. So first of all, what we have understand here, we had understand here the different varieties of the hydrophytes, different categories of hydrophytes which are adapted to live in a aquatic condition, in a different conditions. Okay, different aquatic conditions में, यानी वहाँ पर soil की जो अगर आप देखेंगे pH, salinity वो different होगी, ठीक है. उसी तरह से अगर आप वाटर की क्वालिटी देखेंगे तो वो डिफरेंट होंगे. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखोगे तो डिफरेंट होगा. टर्बिडिटी ऑफ वाटर देखोगे यानी क्लैरिटी ऑफ वाटर वो अलग होगा, ठीक है. तो आप ये देखते हैं तो यू मस्ट कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स, आपको ये देखना होगा. नेक्स्ट अब हम लोग डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करें इनको कि ये कैसे दिखते होंगे. आपने देखा तो है ही, ये देखो. These are example of free floating hydrophytes. कहा एकॉर्निया देखो, पिस्टिया देखो, अभी देख रहे हैं आप इसके फाइब्रस रूट्स हैं. इफ रूट्स प्रेजेंट द रूट्स आर वेरी स्मॉल. द वाटर इज इन सॉरी द प्लांट्स इज इन कांटेक्ट ऑफ द वाटर. अगर आप इसे ऐसे लेकर आप हाथ में आ जाएगा वो, क्योंकि वो फ्लोट करता है, ठीक है. सो एक और आपने ये देखा ही होगा प्लांट, ठीक है ना, विद इन द पॉन्ड. दूसरा देखो ये पिस्टिया, अगेन हियर द रूट्स आर फाइब्रस. तो क्या होता है कि व्हेन यू लुक एट द प्लांट्स दोज हु आर फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, इसमें तुम्हें क्या दिखाई देगा फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में कि इधर द एडवेंटिटियस, रूट्स के भी टाइप होते हैं, नो नीड टू अंडरस्टैंड हियर. एडवेंटिटियस और फाइब्रस रूट्स होते हैं इसमें, और वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, ओके, एंड नॉट वेयर नॉट फिक्स्ड इन द मड, सॉइल में नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर फ्री फ्लोटिंग. अभी यहाँ देखें, ये आपको दिखाई देगा सबमर्ज्ड प्लांट यूट्रिकुलेरिया, ये पानी के अंदर है, देख रहे हो, और पानी के अंदर है और इसके अंदर रूट्स नहीं है. यहाँ देखिए, ठीक है ना. स्टेम, लीव्स आर आल्सो सबमर्ज्ड, स्टेम्स आर आल्सो सबमर्ज्ड, रूट्स आर एब्सेंट इन दैट. तो ये क्या है? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स without roots, getting my point, and the roots are not deep in the mud. तो इसको देखो, ये भी आपको submerged plant ही है, ये भी submerged है, बट इनके roots हैं देखो. तो मैंने आपको बताया था rooted submerged, इसमें hydrilla, this is example, ठीक है ना. Potamogeton is an example of this. So these are the plants, those who are survive within the water. So these are example of submerged plant. यहाँ submerged without root है, submerged plant completely, there is a lack of roots. Here there is a roots present, rooted submerged hydrophytes. Now मैंने बताया था example, अभी देखो निलंबो लोटस का, ठीक है. rooted hydrophytes with floating leaves, इनके leaves is in contact with the water, they are not emergent. इनका लिए word क्या है? floating rooted hydrophytes. तो इनके लिप्स देखो, यहाँ पर ये फ्लोट करते रहते हैं वाटर. ये देखो पीटियोल है, तो पीटियोल देखो लॉन्ग दिखाई दे रहा है आपको, लॉन्ग पीटियोल्स. एंड व्हेन यू कट दिस पीटियोल्स तो हॉलो होगा अंदर में, क्यों? एयर फिलअप होगा तो फ्लोट करता रहेगा. लाइट बनाना है तो इनमें ऐसा मॉडिफिकेशन रहेगा जो लाइट रखे, उसको हल्का बना के रखे, सो वो पानी में तैरता रहे.
और मैंने आपको बताया, मैं अभी मॉडिफिकेशन भी बताऊंगा। तो इनके लिप्स को टच करेंगे तो मैंने क्या कहा, लिप इज स्मूथ बिकॉज देयर इज अ वैक्सी कोटिंग, वैक्स की कोटिंग होती है, क्योंकि पानी उसके ऊपर आए तो पानी एब्जॉर्ब ना करे, उससे वो बचा रहे लिप्स, और वो जल्दी क्या नहीं होगा, डिकम्पोज, सड़ेगा नहीं, ठीक है। तो द पीटियोल, नाउ ये देखो राइजोम्स है, और फिर यहाँ से क्या होगा, रूट्स निकले हुए हैं जो कि मड में है। तो लोटस आप जहाँ देखते हो वो कीचड़ में होता है, कमल कीचड़ में खिलता है नहीं, इसलिए पंकज कहते हैं उसको, पंख में जन्म लेने वाला, ठीक है। नाउ व्हेन यू लुक एट आप फिर इसको देखिए, हियर देयर इज अ मैरियेला प्लांट्स। अभी देखो इसके लिप्स यहाँ पे देखेंगे, ये इमर्जेंट है यहाँ पानी के ऊपर, और यह देखो इसके भी पेटियोल्स लॉन्ग है, ठीक है, राइजोम्स, और उनसे रूट्स निकले हुए हैं, रूट्स मड्स के अंदर है, तो दे आर रूटेड हाइड्रोफाइट्स। तो अभी यहाँ पर हम लोग ने इस प्लांट्स की कैटेगरीज को देखा, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के मॉडिफिकेशंस है। अब वो मॉडिफिकेशन वन बाय वन स्टडी करेंगे, एंड आई विल बिगिंस माय डिस्कशन विद द मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। सबसे पहले आउटर अपीयरेंस देखते हो, जो अभी हमने देखा, इसमें हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन दिखाई देते हैं। आउटर अपीयरेंस, प्राइमा फेशी हम जाएंगे तो स्पीसीज को बाहर से देखेंगे ना, एनाटॉमिकल स्टडी यानी टिश्यूज और सेल्स कैसे हैं वो तो बाद में ले आकर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो पहले मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया, ठीक है, साइंटिस्ट ने, बॉटनिस्ट ने, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन उन्हें दिखाई दिए। अब मॉर्फोलॉजिकल जब एडेप्टेशन तुम देखोगे तो उसमें मॉर्फोलॉजी यानी आउटर प्लांट्स में क्या चीज़ें दिखाई देती है तुम्हें, पहली चीज़ दिखाई देगी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो हम लोग देखेंगे लीफ का क्या मॉडिफिकेशन दिखाई देता है एक्वेटिक प्लांट में, फिर हम लोग देखेंगे कि रूट्स में क्या स्टेम्स और लीव्स में क्या मॉडिफिकेशन। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। मैंने अभी अभी बताया था कि द प्लांट्स दोज हु आर always living in the aquatic environment are known as hydrophytes, okay. And when you look at the modification in the hydrophytes morphological adaptation, we find the different adaptation. Now when you look at the roots of a plant, what kind of modification you find that roots either poorly developed or absent. अभी अभी आपने देखा whether the rooted plants, the root is not well developed, the root is small, एंड इफ यू लुक एट द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स तो उसमें तो रूट एब्सेंट है, और रूट्स है भी तो फाइब्रस स्मॉल रूट्स है, तो इसीलिए क्या लिखा कि रूट्स पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट इन फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स लाइक वुल्फिया, सैल्विनिया, सिरेटोफाइलम। हमने ऊपर अभी देखा था एग्जाम्पल, ठीक है, कि फ्री फ्लोटिंग के अंदर स्मॉल फाइब्रस रूट होते हैं, या कुछ में तो होते भी नहीं, ठीक है। पुअरली डेवलप्ड इन हाइड्रिला तो लिखा है एब्सेंट इन साल्विनिया, शेरेटोफाइलम और वुल्फिया, पुअरली डेवलप्ड इन हाइड्रिला। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। फिर लिखा शाल्विनिया के लिए, शाल्विनिया द सबमर्ज्ड लीव्स कॉम्पनसेट फॉर द रूट्स। शाल्विनिया में क्या है, शाल्विनिया में रूट्स नहीं है, उनकी लिप्स जो है वो थिन लिप्स होती है, पतली लिप्स होती है, और वो वाटर के अंदर होते हैं, तो रूट्स की कमी लिप्स ने पूरी कर दी, ठीक है। इन साल्विनिया रैननकुलस विच ग्रो इन द मड, रूट्स आर वेल डेवलप्ड विद डिस्टिंक्ट रूट कैप्स। अब रैननकुलस जो प्लांट है वो क्या है, दैट इज रूटेड प्लांट, रूटेड हाइड्रोफाइट्स। So when it is rooted hydrophytes, then the roots is developed, okay. और roots जब होते हैं, जैसे ये if this is the root, तो roots having, यहाँ देखोगे roots having root cap, ऐसे roots cap होते हैं। The root cap is present in ranunculus plant, and they have the roots which is inside the mud. So they are rooted hydrophytes. The roots is present. Now when you look at root hairs are absent or poorly developed.
जब आप कभी भी पौधे अपने टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स को जाकर अगर फाड़ोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, ये रूट्स के ऊपर ना रूट्स हेयर होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं रूट हेयर्स, ठीक है ना, पतले थिन रूट हेयर्स निकले होते हैं। बट अगर हाइड्रोफाइट्स में जाएंगे तो रूट हेयर्स नहीं होगा, क्योंकि इनको वाटर अवॉइड करना है, इनको वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा। टेरेस्ट्रियल प्लांट में रूट हेयर्स होते हैं और रूट्स जो होता है एक्सटेंडेडली ब्रांच्ड होता है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना है। वो लैंड के ऊपर है जहाँ वाटर स्कार्सिटी है। ये तो पानी में ही रह रहे हैं, इनमें ज़्यादा अगर रूट्स डेवलप होगा और तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो उनके लिए हार्म करेगा। इसलिए वो कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं अडेप्ट करते जिनसे उनको हार्म हो, क्योंकि उनको वाटर में रहना है। तो इसीलिए इनमें रूट हेयर्स भी एब्सेंट है। फिर मैंने क्या लिखा है कि द रूट कैप इधर एब्सेंट और रिप्लेस्ड बाय द रूट पॉकेट्स। रूट कैप कुछ ही पौधे में होते हैं, जैसे मैंने रैननकुलस का एग्जांपल दिया कि इनमें रूट कैप्स है, अदरवाइज ये रूट कैप्स एब्सेंट होता है मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोफाइट्स के अंदर, ठीक है। एंड इन लेमना आई हैड गिवन एग्जांपल, रूट एक्ट सिंपली एज अ बैलेंसिंग और एंकरिंग ऑर्गन। या तो पकड़ के वो रखता है या बैलेंस करता है प्लांट को वाटर के ऊपर, लेमना के अंदर। So what we observed that in the free floating hydrophytes, the roots are either absent or very small, either it is in the fibrous form or sometimes adventitious roots are also present. Second, in the rooted submerged hydrophytes, the roots are small and enter into the mud. In the rooted emergent hydrophytes, the roots are also present, but in general, such roots having no root hairs. उनमें रूट हेयर्स नहीं होता, एंड लार्जली द रूट्स कैप्स आर ऑल्सो एब्सेंट, बट इन रैननकुलस रूट कैप प्रेजेंट. So such kind of modification we observe in the plants, those who are adapted to live in the aquatic conditions. तो ये रूट्स के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखना है। मैंने कहा फ्री फ्लोटिंग में एब्सेंट, और अगर रूटेड समर्ज्ड या रूटेड इमर्जेंट है तो रूट्स हैं, बट उन रूट्स में रूट हेयर्स नहीं होंगे, रूट कैप भी लार्जली एब्सेंट होगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने। तो यहाँ देखो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ये थोड़ा कलरफुल है, वो ब्लैक एंड वाइट था, है ना। तो कलरफुल आप देखेंगे फ्री फ्लो आइकोराइनो, यहाँ देखिए एनपिस्टिया, देखो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा वेरी स्मॉल फाइब्रस रूट्स। ओके, नाउ यहाँ देखो रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, तो इनकी रूट्स भी बहुत डीप नहीं है, ठीक है। ये राइजोम्स है जहाँ से ये रूट्स निकले हुए हैं, ये पीटियोल्स है, लॉन्ग पीटियोल्स, एंड पीटियोल्स में इंटीरियर मैंने क्या हॉलो होगा, स्टॉर्ट रखेगा, फ्लोट करेगी ये, ठीक है ना। यहाँ भी देखो, ठीक है, इन केस ऑफ द निम्फिया मार्शेलिया, निम्फिया में देखो लोटस की तरह ही यहाँ पे भी ये लीफ है जिसको लेमाइना कहते हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स, ये पीटियोल्स, ठीक है ना, ये फ्लावर बर्ड्स हैं, और ये राइजोम जहाँ से कि क्या निकला है, रूट्स निकले, दैट इज डीप इनसाइड द मड। ओके, so this is an example. Now when you look at submerged plant without roots, try to understand. तो ये देखो यहाँ पर आपको सेरेटोफाइलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रूट का काम लीफ ही कर रहा है। रूट देखो, लीफ वेरी थिन, इट अपीयर्स लाइक अ रूट्स, तो यहाँ पे उसका फंक्शन वही कर रहा है, सेरेटोफाइलम में समर्ज्ड है, ठीक है। यहाँ देखिएगा यूट्रिकुलेरिया, it is also a submerged plant. Now when you look at rooted submerged hydrophytes, Vallisneria, Hydrilla, ठीक है, ये submerged है बट rooted है, ये देखो राइजोम से रूट्स निकला हुआ है, ये दिस इज द Vallisneria, दिस इज Hydrilla, दिस आर द कॉमन प्लांट्स, आपको आसपास कहीं भी दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ देखिए द रूट्स इज नॉट वेरी लॉन्ग, but yes, of course it is developed. Now when you look at rooted emergent मैंने बताया था जिसके लिप्स और स्टेम्स वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहते, तो हम उसके लिए वर्ड इमर्जेंट यूज करते हैं। तो ये इमर्जेंट प्लांट्स है। एग्जांपल देखो शैगिटेरिया,
रैननकुलस, इसी की बात कर रहा था, रैननकुलस, जिसके की रूट्स में अगर देखेंगे तो रूट कैप भी होता है, मड में रूट होते हैं, ठीक है। समझ डाइसेक्टेड लीफ्स है, ये लीफ देखो डाइसेक्टेड है, ठीक है। ये फीचर भी हम पढ़ेंगे। इमर्जेंट है इसका एरियल लिप्स, और स्टेम्स इमर्जेंट है, यहाँ पानी के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। सो दीज आर द एडेप्टेशन। तो रूट में हमने एडेप्टेशन देखा कि क्या है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एडेप्टेशन इन स्टेम। अब इन पौधों के स्टेम्स के बारे में हम क्या कुछ एक दो पॉइंट्स याद रखेंगे। अभी जैसे आपने लोटस का एग्जाम्पल लिया, निलम्बो न्यूशिफेरा एक स्पीसीज है, जीनस निलम्बो है, न्यूशिफेरा इज ए स्पीसीज, आप कहते हो लोटस, ठीक है। निम्फिया अभी आपने देखा, ये भी लोटस की तरह दिखाई देते हैं आपको पानी के अंदर, निम्फिया, ठीक है। तो क्या लिखा है, स्टेम इज वेरी मच रिड्यूस्ड। आपने पीटियोल देखा था, जो इनके स्टेम से अटैच्ड होकर पेटियोल्स हैं जिससे लीफ अटैच्ड है, वो आपने लंबे देखे थे, ठीक है ना। वो अंदर से हॉलो होता है, लंबा होता है फ्लोट करने के लिए, लेकिन इनके स्टेम्स रिड्यूस्ड होते हैं। एंड इन सम मॉडिफाइड इनटू द राइजोम्स, जहाँ से रूट्स निकल रहे हैं, राइजोम्स आपको नीचे दिखाया था स्ट्रक्चर राइजोम, ठीक है। थिन एंड डेलिकेट, तो स्टेम इज largely very small, thin, and sometimes modified into rhizomes. ओके, तो राइजोम स्ट्रक्चर आपने देखा था कि रूट्स के पास ही राइजोम था, फिर वहां से पीटियोल निकले थे और उसके ऊपर। तो ठीक से फिर से एक बार रिकॉल करते हैं या वो डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर दिखाई देगा, ये देखो राइजोम, राइजोम इज अ स्टेम, इट इज मॉडिफाइड स्टेम, इट इज राइजोम। तो रूट्स के पास ही राइजोम है और यहीं से फिर पीटियोल निकला, उससे अटैच्ड है लिफ, ठीक है। सो इट इज मॉडिफाइड इनटू द petioles and rhizomes. Next, in the submerged forms, the water which is completely submerged, as for example hydrilla or Potamogeton, the stem is long, slender, spongy and flexible. Okay, तो लॉन्ग सिलेंडर स्पॉन्जी, स्पॉन्जी क्यों है? बिकॉज स्पॉन्जी का मतलब क्या है कि द एयर इज फिल्ड इन दैट। स्पॉन्जी का मतलब होता है कि उसके अंदर एयर फिल्ड होकर लाइट होंगे, हल्के होंगे, सो दे कैन फ्लोट इजली। So that's why what the submerged form of hydrilla and Potamogeton, what I have mentioned, that their stems are long and the shape is cylinder, as well as they are spongy, means they have the stem having the what, the air pockets, and that's why they float. Okay, in free floating forms it may be cylinder floating horizontally on the water surface like azolla. तो आपने क्या देखा, 2 and 3 things is very common. First, when you look at the plants, those who are floating, the stems is small, modified into rhizomes. When you look at the rooted plants, rooted floating hydrophytes, again the stem is small, the petioles is developed, petioles is aerated, hollow petioles, they are floating. Spongy stems are there. Spongy stems, why? Because they have to float, they make themselves lighter to float in the वाटर। स्पॉन्जी रहने का मतलब क्या है? अगर इंटरनल हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनके अंदर क्या होंगे, एयर स्पेसेस होगा, लार्ज एयर पॉकेट्स होंगे, लार्ज एयर स्पेस होगा, और लार्ज एयर स्पेस होगा तो उसमें एयर रहेगा जो कि उसको लाइट बना के रखेगा, तो वो फ्लोट करते रहते हैं। तो दिस मॉडिफिकेशन वी ऑब्जर्व। नाउ व्हेन यू लुक एट लीव्स, तो लीव्स हमने क्या देखा, कुछ पौधों में लीव्स आपने देखा निडल लाइक, वेरी थिन, ठीक है। जैसे सेरेटोफाइलम में मैंने बताया था कि वहां लीफ जो है वो रूट्स की तरह दिख रहा है, वेरी थिन निडल लाइक। फिर आपने क्या देखा, इन सम प्लांट्स द लीव्स आर वेरी स्मॉल। लेकिन आपने क्या देखा, निलंबो में या निम्फिया में द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू लमाइना, फ्लैट ब्रॉड, बड़ा लीफ है। क्यों है बड़ा उसका, वो साइज क्यों बड़ा हो गया? बिकॉज ही हैज टू फ्लोट, ठीक है। फिर आपने कुछ में देखा था नीचे, आपने मैंने ये दिखाया था कि यहाँ डाइसेक्टेड लीव्स थे, यहाँ देखो,
यहाँ लिफ डाइसेक्टेड है, यहाँ लिखा भी है समझ डाइसेक्टेड लिप्स, ठीक है ना। यहाँ देखो लिप्स आर डाइसेक्टेड, ठीक है। यहाँ देखो ब्रॉड लिफ इमर्जेंट है ये। यहाँ देखो लमाइना, ये देखो निडिल लाइक लिप्स है, ठीक है। यहाँ देखो ब्रॉड लमाइना, ठीक है। वैक्सी कोटिंग फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि द लिप्स यहाँ तो ये फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर है सरफेस के। So what you find, there are different adaptations and modifications we observe in the leaf. So leaves are thin, narrow, linear, and some with the long petioles, like in Nymphia and Nilambo, the petioles are long, and large lamina. कमल के फूल में large lamina या Nymphia में large lamina. Lamina is a broad leaf which is covered with the wax. मैंने क्या कहा, leaf covered with the wax. Wax is a water repellent. To avoid the water, they have the waxing coating or hairs, okay. In some dissected into the segment. कुछ पौधों में segment में dissected होगा lips, okay. So such kind of modification is there to avoid the water. What is the purpose is to avoid the water. इसलिए उनमें ये modification है। तो तुमने क्या देखा कि रूट, स्टेम और लीव्स आपको हाइड्रोफाइट्स के अलग दिखाई देंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट से डिफरेंट होगा। रूट्स या तो फ्री फ्लोटिंग में एब्सेंट होगा, अगर प्रेजेंट है तो फाइब्रस स्मॉल रूट्स होंगे, कभी कभी एडवेंटिटियस भी। दूसरा आपको क्या दिखाई देगा कि रूट्स अगर हैं भी तो देर आर स्मॉल रूटेड इन द रूटेड सबमर्ज्ड और रूटेड इमर्जेंट प्लांट्स के अंदर, okay. Looks like appearing from the rhizome. Rhizome is a part of a stem, so stems is modified into rhizomes. Stems are very small in size in majority of aquatic plant and converted into the leaf is connected with the petioles, so modified in petiole. Petiole is what? Hollow and lighter, spongy. Stems are also spongy because plant has to float, and leaves are basically either small, needle like, very thin, or sometimes it is broad, lamina like, and having the waxy coating. So water repellent cover is there because they have to survive in water. So these are the modification. इसको हम कहते हैं morphological adaptation. अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ये थोड़ा टेक्निकल होगा बट आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपलर। एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन, पौधे को अगर डाइसेक्ट करोगे, उसके रूट को, उसके स्टेम्स को, उसके लीव्स को, और फिर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर सेल्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन। एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जब आप इंटीरियरली देखोगे प्लांट्स को तो उनके रूट्स में, उनके लीव्स में, नॉर्मली अगर आप देखोगे प्लांट्स को, तो प्लांट्स को कट करोगे, उनके रूट्स को या स्टेम्स को, तो इस तरह से सेल की एक लेयर दिखाई देगी ऊपर में, ठीक है। इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ईपी मीन्स एबव, डर्मा मीन्स स्किन होता है। तो जैसे ह्यूमन में स्किन होती है तो उसमें भी अपर लेयर होगा ना, जैसे ये मान लो स्टेम है या रूट्स है, तो इसका ये जो अपर लेयर बना है वो तो सेल्स का बना होगा। तो जब तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो एक ऊपर में लेयर दिखाई देगी, ठीक है ना, उसके अंदर भी लेयर होंगे, और इस लेयर के ऊपर कई बार ना एक कवर होता है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। यानी इसके इस सेल्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर एक लेयर ऐसे होता है, उसको क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है, क्यूटिकल कहते हो। तो अभी क्या लिखा है मैंने यहाँ, क्यूटिकल एज ईदर कंप्लीटली एब्सेंट और इफ प्रेजेंट इट इज थिन, पुअरली डेवलप्ड। यानी जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें क्यूटिकल या तो होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत पतला होगा। यानी जो अपर लेयर है उसके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है, वो कवर या तो एब्सेंट होगा या थिन होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। एक मॉडिफिकेशन आपने देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो क्यूटिकल नहीं मिलेगा, अगर होगा भी तो क्या होगा, वो बोला। अब देखो इन प्लांट्स में हमने कहा कि ये प्लांट स्पॉन्जी होते हैं। क्यों होते हैं स्पॉन्जी?
क्यों होते हैं लाइटर, क्यों होते हैं हल्के? क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जिसे हम एरेनकाइमा कहते हैं, एरेनकाइमा। ठीक है, अभी एरेनकाइमा में आपको क्या दिखाई देगा? एयर स्पेसेस। एंड दिस एरेनकाइमा, दिस स्पेशल टिश्यूज हेल्प इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड बायोन्सी। जैसे इसके नीचे मान लो शेल है, शेल ऐसे अरेंज्ड है, तो ये देखो एयर स्पेस बन गया। ठीक है, चारों तरफ शेल है, बीच में हॉलो स्पेस है, तो वहाँ एयर फिल हो जाएगा, तो एयर स्पेस क्रिएट रहता है। इससे क्या होते हैं? बॉडी लाइट होती है, हल्की बनी रहती है। ठीक है, तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, हल्के होते, स्पॉन्जी होते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उनमें एरेनकाइमा होता है, उनमें एयर स्पेसेस होते हैं जिसमें एयर फिल्ड होता है जो बॉडी को लाइटर बनाए रखता है। ठीक है, ये क्या है? एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। कैसे दिखाई देगा? व्हेन यू लुक इन माइक्रोस्कोप, उनके जब आप स्टेम्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे उसमें। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है? स्टोमेटा इधर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट ओनली एट अपर सरफेस और इवन नॉन फंक्शनल। इवन नॉन फंक्शनल। स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा ओपन होने से क्या होता है? वाटर जो होते हैं वो निकलते हैं। स्टोमेटा ज़्यादा होगा, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब भी होगा, वाटर रिलीज भी होगा, तो स्टोमेटा इनमें एब्सेंट होता है। यानी इस लेयर के ऊपर अगर स्टोमेटा की ओपनिंग आप देखोगे, इसके ऊपर ये अगर मैं कहूँ कि ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा वेरी लेस इन नंबर और इधर एब्सेंट, और इफ प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस, नॉट इन लोअर सरफेस। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट में देखोगे यू ऑल्सो गेट द स्टोमेटा इन द लोअर सरफेस, और जेरोफिटिक प्लांट में देखोगे अगर लीफ है तो उनके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा है, अपर सरफेस पर एब्सेंट होते हैं टू अवॉइड द व्हाट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। उनमें अलग मॉडिफिकेशन आपको दिखाई देगा, इसमें सरफेस पे दिखाई देगा स्टोमेटा, नॉट ऑन द लोअर साइड। गेटिंग माई पॉइंट? एंड इफ प्रेजेंट, so they are present in the lower side, sorry upper side and non functional as I have said। लोअर साइड में कहाँ दिखाई देंगे आपको? जेरोफिटिक प्लांट में। वैसे जेरोफिटिक मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो लीफ बहुत छोटा होता है, स्टोमेटा एब्सेंट होते भी है तो लोअर साइड में होंगे, वहाँ जस्ट अलग कंडीशन है क्योंकि वहाँ ड्राउट इवेड करना है, ड्राई कंडीशंस है वहाँ पे, तो कंपैरिजन लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड इनटू पैलिशेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, अभी देखोगे क्या लिखा है कि मेसोफिल्स जो होते हैं दे आर यूनिक शेल्स। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या दिखाई देगा कि द मेसोफिल्स सेल्स व्हेन यू लुक एट, मैंने लिखा है कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, उसमें ऐसे एयर स्पेसेस होते हैं जिसके कारण इसे हम कहते हैं it modified into a spongy parenchyma। तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि अगर आप लिप्स में भी देखेंगे तो आपको इस तरह के सेल्स दिखाई देंगे यूनिक, जिनमें कि एयर फिलअप होगा। तो इन द स्टेम्स एंड लिप्स यू फाइंड दैट the spongy parenchymal shells are present where the air filled up, okay, make it lighter। तो जितने मॉडिफिकेशंस आप देख रहे हैं वो पौधे को हल्का बनाने के लिए मॉडिफिकेशंस यहाँ दिखता है। वो सारे स्ट्रक्चर जो वेट प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट को वो एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि क्लोरोफिल इन एडिशन टू द लिप्स ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। नॉर्मली क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, स्पेशली इन द लीफ व्हेन यू लुक एट द टेरेस्ट्रियल प्लांट, बिकॉज व्हेन यू लुक एट the plants in the deciduous region or here in the tropical region we observe deciduous plant। तो अब प्लांट मैच्योर होता है तो बार्क डेवलप होता है, एक छाल डेवलप हो जाती है पेड़ों के ऊपर, कलर आपने देखा होगा ग्रीन नहीं रहता। तो प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन में, उनमें ग्रीन पार्ट होता है अर्लीस्ट
स्टेम जो होता है, जो अभी सीड से निकला है, सीडलिंग से पौधे, और छोटे होते हैं तो उनका स्टेम ग्रीन होता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगते हैं, हाइट लेने लगते हैं, कैनोपी लार्ज होने लगती है ट्रीज की, वैसे वैसे स्टेम्स का कलर क्या होता है, वो ग्रीन नहीं रह जाता है, और उसके ऊपर एक सेलुलोज की बड़ी लेयर बनती है जिसे आप बार्क कहते हो, छाल कहते हो। और फिर आप क्या देखते हो, लिप्स जो है वो ग्रीन है, उनमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन आपको पता है कि वाटर में सनलाइट कुछ ही मीटर्स तक पेनिट्रेट करती है, वो 20 मीटर से 50 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकती है। वो डिपेंड करता है क्लैरिटी ऑफ वाटर, वाटर कितना क्लीन और क्लियर है। अगर ये पौधे पानी के अंदर रहने वाले हैं, लाइट भी कुछ ही मीटर तक जाने वाली है, तो अगर पौधे के हर भाग में क्लोरोफिल नहीं होगा तो इनका फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? एक तो वाटर, वहां पे लाइट ही कम पहुंचेगी, बिकॉज लाइट हैज टू पेनिट्रेट इनटू द वाटर. So that's why there is a modification that the chlorophyll is not only present or restricted till the leaf, the chlorophyll is also present in the stem. Okay, the stem is sometimes modified into rhizomes. So in certain plants you find that rhizome is also green, they have the chlorophyll. So that's why what I have mentioned, that the chlorophyll is not only restricted to the leaves only, in addition to the leaves they are also present in other part. Getting my point? What is the reason? Because they have to optimally use the light which is there in the water. उसको optimum use करना है light को. एपिडर्मल शेल्स थिन वॉल्ड, एपिडर्मिस कहते हैं इसको, आउटर लेयर को. ये बोला कि ये थिन होता है, पतला होता है, जो बाहर का लेयर होता है. ठीक है. और क्या होता है प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट्स के अंदर मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं. मैकेनिकल टिश्यूज का काम क्या होता है? वाटर को कंडक्ट करना और फूड को कंडक्ट करना. उनको क्या बोलते हैं? उनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. उनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. तो जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट, उनमें आप देखेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, डाइकॉट्स प्लांट्स जो होते हैं डेवलप लैंड के ऊपर, इसमें दो वेसल्स होते हैं. एक वेसल्स को जाइलम कहते हैं, एक ट्यूब को फ्लोएम कहते हैं. फ्लोएम जो है लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ से फूड जो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको लेकर ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, रूट्स तक पहुँचा. और जो रूट्स वाटर लेती हैं, वो वाटर को जाइलम जो है वो क्या करता है, कंडक्ट करके रूट्स तक लीफ तक पहुँचाता है, क्योंकि लीफ में वाटर और CO2 दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, C6H12O6. ठीक है. यानी ये ग्लूकोज बनने के लिए क्या ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है, जो सॉइल से मिलता है टेरेस्ट्रियल प्लांट को, और CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है. ओके. तो दोनों ज़रूरत है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, CO2 एंड H2, विच फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज. और उसी को कहते हैं प्लांट ने भोजन बना लिया. ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है. तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है, दैट इज द मैकेनिकल टिश्यूज. इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना. एक फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है. क्लियर है? सच काइंड ऑफ टिश्यूज आर लार्जली एब्सेंट इन द हाइड्रोफाइट्स, और इफ प्रेजेंट द नंबर इज लेस. तो इसीलिए मैंने लास्ट लिखा है कि द पॉइंट्स, लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यूज लैकिंग एंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स वेरी फ्यू, नॉन लिग्निफाइड. ठीक है. तो जाइलम और फ्लोएम जो ट्यूब्स हैं, जो कि यहाँ पर मैकेनिकल टिश्यूज बनाते हैं, वो लैक करते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, या अगर होंगे तो वेरी लेस इन नंबर, वेरी लेस इन नंबर. ओके. तो दिस इज द एनाटॉमिकल फीचर्स. अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे पौधों के, तो हमें ये स्पेसिफिक फीचर दिखाई देगा पौधों के अंदर. ठीक है. खास करके हाइड्रोफाइट्स के अंदर. ठीक है. तो कुछ स्पेसिफिक एक दो फीचर्स याद रखना. मैंने कहा क्यूटिकल एब्सेंट होता है. अगर प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल क्या है? एपिडर्मिस, यानी बाहर की जो लेयर है, जैसे रूट्स के, स्टेम्स के, ठीक है ना, उसके ऊपर के लेयर्स को कहते हैं हम एपिडर्मिस. ईपी मीन्स अबव, डर्मा मीन्स स्किन. तो ये वो लेयर है जो कि मैंने कहा थिन होता है, पतला, और उसके ऊपर क्यूटिकल के लेयर एब्सेंट होते हैं लार्जली. अगर किसी पौधे में प्रेजेंट भी होते हैं हाइड्रोफाइट्स में, तो बहुत थिन होते हैं.
उसके अलावा मैंने कहा इसमें एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा जहाँ एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। और मेसोफिल सेल्स जो होते हैं लिप्स के अंदर, उसमें भी पैलिशिड स्पॉन्जी सेल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, उसको स्पॉन्जी बनाते हैं, जिसके कारण वो वाटर पे फ्लोट करता रहता है। और उसके अलावा मैंने कहा जो ये मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं, जो जाइलम और फ्लोएम जो हैं, वो कंडक्टिंग टिश्यूज, ये इसमें कम संख्या में होते हैं, वेरी लेस, और समटाइम्स इट इज़ एब्सेंट इन सर्टेन प्लांट्स। ओके, सो दिस इज़ द कंडीशन। क्यों ऐसा है, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि क्लोरोफिल इसके मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स में होते हैं, तो फूड तो वो हर जगह बना ही ले रहा है, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होंगे उस पार्ट में फूड बन जाएगा। तो उन पौधों में फ्लोएम की ज़रूरत नहीं है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पौधे के हर हिस्से में भोजन बन रहा है तो भोजन का कंडक्शन कहाँ करना है। टेरेस्ट्रियल प्लांट में तो लीफ में भोजन बन रहा है तो उसको पूरे शरीर में पहुंचाना है, क्योंकि हर ऑर्गन को काम करना है ना, हर बॉडी पार्ट को काम करना है, हर सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, तभी तो सेल सरवाइव करेगा। तो वहाँ कंपल्शन है कि उसको डेवलप रखना है। बट हाइड्रोफाइट्स में मैंने अभी कहा कि केवल उसके लीफ में क्लोरोफिल नहीं होता, उसके स्टेम में भी होता है, तो यहाँ बन ही रहे तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। जब जिस पार्ट में नहीं बनेगा वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा मॉडिफिकेशन है। तो लिंक करके अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो आपको ईजिली समझ आएगा कि क्यों ये चीज़ें एब्सेंट है। फिर मैंने कहा चूंकि उसको स्पॉन्जी और लाइटर बनाना है, इसलिए एरेनकाइमल सेल है, या पैलिशेड पैरेनकाइमा भी जो है उसमें भी हॉलो स्पेसेस है जिसमें एयर फिलअप होते हैं। तो सच काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन आर देयर। फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखें हम जरा, बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको कैसे ये रेगुलेट करते हैं या उसमें क्या चेंजेस करते हैं, वो सरवाइव करने के लिए देखोगे। तो मैंने लिखा है कि द हाइड्रोफाइट्स आर बेसिकली वेयर दे आर लिविंग द हैबिटेट्स मोस्टली डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है। पानी में रह रहे हैं, ठीक है, तो वाटर में तो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, ठीक है। तो क्या तुमने देखा, मैंने क्या लिखा है, हैबिटेट मोस्टली डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन कंटेंट, thus having an ability to respire anaerobically। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है सराउंडिंग में ऑक्सीजन न भी हो तो रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी सेल, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ये शेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है जनरली, और सेल्स के अंदर एक ऑर्गन होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आप कहते हो उसको। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द शेल, आपने ऐसा सुना होगा कि इसे पावर हाउस ऑफ द शेल कहते हैं। अभी क्या होगा कि सभी सेल्स को एनर्जी चाहिए टू सर्वाइव, और एनर्जी के लिए वो क्या करते हैं कि जो फूड बनता है उनके बॉडी के अंदर, ये फूड बनता है, ठीक है, दिस इज द फूड। ये प्लांट तो खुद बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे कैन फॉर्म देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी बताया कि ये बनाने के लिए उनको लाइट चाहिए और साथ में CO2 प्लस H2O चाहिए। इट इज़ अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर, इट इज़ अवेलेबल इन वाटर, वाटर इटसेल्फ, ठीक है। ये देख ही रहे हो, एक्वेटिक प्लांट को तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पानी में ही है। टेरेस्ट्रियल प्लांट को ये सॉइल के पोर्स से मिल जाता है, रूट्स की मदद से। अभी ये इसके लिए क्लोरोफिल चाहिए और साथ में सनलाइट चाहिए, तो ये प्रोसेस होता है, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होते हैं और वाटर भी रिलीज होता है इस प्रोसेस के अंदर। अब ये जो है इसे फिर प्लांट्स यूटिलाइज करेगा। क्यों यूटिलाइज करेगा? क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी के लिए फिर कैसे इनको एनर्जी मिलेगा, तो ये इसका ब्रेक डाउन करेंगे, फिर ये इसको तोड़ेंगे, और इसके बॉन्ड्स जो हैं इनके बीच में जो एनर्जी है वही एनर्जी को यूज करेगा प्लांट्स के सेल्स अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए। इसी प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को बनने की प्रक्रिया को तुमने सिंथेसिस वर्ड दिया। सिंथेसिस माने फॉर्मेशन होता है, तो फोटो के प्रेजेंस में फॉर्म कर रहा है इनकी मदद से, ये इसलिए टर्म दिया तुमने फोटोसिंथेसिस। बट रेस्पिरेशन जब यूज करते हो तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है।
यहाँ ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है फिर से और CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है फाइनली। इसी प्रोसेस को, ये प्रोसेस सेल के अंदर होता है, इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हो। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन of oxygen and exhalation of CO2. This process is known as breathing. When we use the word respiration, जब श्वसन कहते हो तो वो सेल के अंदर होता है, that is a cellular process. और सेल के अंदर क्या होगा, ये कैसे ये ब्रेक डाउन होगा, उसमें एक प्रोसेस लंबा है। तो सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल में ये साइटोप्लाज्म होता है और सेल के अंदर कई सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो जो मैंने वर्ड यूज किया एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसी साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि एक प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन मिले, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये रेस्पिरेशन नहीं होगा। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बाई प्रोडक्ट के तौर पे जैसे ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो पहले पायरोबिक एसिड बनता है, 3 कार्बन का एसिड बनता है, और फिर वो ब्रेक होकर क्या बनता है, प्लांट के अंदर इथेनॉल बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट प्लांट में एथेनॉल है और एनिमल में लैक्टिक एसिड बनता है। इसीलिए गर्मी के टाइम में तुमको जब फूड रखते हो बनाकर, वो खट्टा लगने लगता है। क्यों खट्टा लगता है? थोड़ी देर के बाद दाल आपकी खट्टी हो जाती है, सब्जी खट्टी हो जाती है, इसलिए क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, वो प्लांट प्रोडक्ट है, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अभी समर आएगा तो समर में क्या होगा, इंटेंस हीटिंग के कारण, यहाँ पर हीटिंग हो रही है, तो हीटिंग के कारण एयर गर्म होगा, एयर गर्म होकर लाइट होकर ऊपर उठेगा, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ हाई टेम्परेचर और लैक ऑफ एयर के कारण जब तुम सब्जियां बाहर रखते हो, फल बाहर रखते हो, ठीक है, या दाल को बाहर रखते हो बनाकर, तो वो खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इथेनॉल वो अल्कोहल है, कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। इसीलिए आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो, जहां टेम्परेचर कम कर कर आप उसे बचाने की कोशिश करते हो, उसमें एनारोबिक प्रोसेस को रोक देते हो तुम, ठीक है। तो एनारोबिक प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर, वो है इथेनॉल, ठीक है। और एनर्जी इस प्रोसेस में बनती है, उसको आप कहते हो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। लेकिन एनारोबिक प्रोसेस में एटीपी की संख्या कम मिलती है। वही अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो वहां ज्यादा मात्रा में एटीपी बनता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये प्लांट जो है वो, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वाटर के अंदर, तो ऐसे में वो एडेप्टेड होते हैं कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर कर और एटीपी बना लेते हैं और अपने सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने अपने मैकेनिज्म डेवलप कर लिया, ठीक है, कि कम ऑक्सीजन रहने के बाद भी वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जितनी एनर्जी इनको चाहिए, वो एनारोबिक प्रोसेस से एटीपी बनाकर वो अपने एनर्जी डिमांड को फुलफिल करते हैं, क्योंकि उनको भी रिप्रोड्यूस करना है, उनको भी ग्रो करना है, उनको भी डेवलप होना है, तो उसके लिए एनर्जी कंजम्पशन होगा, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल एरेटिंग ऑर्गन्स भी इनमें डेवलप हो जाता है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए वो स्पेशल एरेटिंग ऑर्गन डेवलप कर लेते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। सो दैट इज़ द मॉडिफिकेशंस विच वी फाइंड फिजियोलॉजिकली इन द प्लांट। तो तुमने क्या देखा, व्हाट वी हैड डिस्कस्ड टुडे? आई हैड डिस्कस्ड दैट व्हाट काइंड ऑफ हाइड्रोफाइट्स आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, सेकेंड categorizations, and the example is important. Then what I have said that
कि we find different kind of modification. First I had discussed the morphological adaptation in the hydrophytes, और उसमें भी हमने बताया कि मॉर्फोलॉजी में भी क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो तुम्हें दिखाई देता है लिफ और स्टेम और रूट्स, और उनके मॉडिफिकेशन मैंने बताया आपको, लिफ इधर स्मॉल और निडल लाइक और वेरी थिन, और समटाइम्स इट इज लार्ज लमाइना लाइक, okay, associated with the petioles which is very lighter, spongy and floating over the water. Roots in the floating are absent, or if present are very small, fibrous. In the rooted submerged or rooted emergent hydrophytes, if the roots are present, okay, it is long and developed in the muds. And when we look at the stems are modified into rhizomes. Stems are very small, not very large, stout, except few emergent plants where the stout stems are present, the long stems are present, but the stems are also spongy because they have to float in the water. That's why the chlorophyll are present in almost all the parts, not restricted to the leaves only, they are also present in the stems. Okay, we can find out it, हम लोग देख सकते हैं उसको. तो दिस आर द कंडीशंस व्हाट वी ऑब्जर्व इन द हाइड्रोफाइट्स. ये हमने हाइड्रोफाइट्स के अंदर कंडीशंस देखे. अभी जब आप हाइड्रोफाइट्स के बाद पढ़ेंगे तो आपको क्या देखना है, मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ मेजोफाइट्स. मेजोफाइट्स मैंने क्या कहा कि मेजोफाइट्स आर सच प्लांट्स विच मे ग्रो इन विच कंडीशन, इन अ मॉइस्ट कंडीशन, not in extreme dry condition, or they also won't want excessive water. Both these condition they avoided. So the meso means the middle, phyta means plant, the plants which grow in the mid water condition, intermediary water conditions, they need the moisture. Okay, now what kind of modifications you find out? Of course, whether the roots is present, yes of course present, but the roots is modified in the different form. अब उसमें भी देखो, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे लैंड के ऊपर ये मेजोफाइट्स, और फिर उसके बाद जेरोफाइट्स, और उसके अलावा एक और पौधा है जिसे हम कहते हैं हैलोफाइट्स. व्हाट आर द हैलोफाइट्स? द प्लांट्स दोज हु सर्वाइव इन द सलाइन वाटर और द सलाइन सॉइल आर नोन एज हैलोफाइट्स. वहाँ जहाँ सॉइल में सैलिनिटी होती है वहाँ पर प्लांट वो सर्वाइव करते हैं, हम उसे हैलोफाइट्स कहते हैं. अलाइन वर्ड सॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है. तो जैसे आप चले जाओगे मैनग्रोव्स रीजन में, जैसे सुंदरबन रीजन में चले जाओ जहाँ डेल्टाज है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ने बनाई है, ठीक है ना, एट द माउथ ऑफ द गंगा रिवर, तो वहाँ आप क्या देखोगे कि इंटरटाइडल जोन भी है, ओशन का पानी आ रहा है, वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, और पूरा मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है, तो पानी वहाँ क्या दिखाई देगा, शलाइन होगा, और उस एरिया में स्पेसिफिक प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि उसी रीजन में एडेप्टेड होते हैं सर्वाइव करने के लिए. जैसे मैंने कभी एग्जांपल मैनग्रोव्स का दिया होगा कि मैनग्रोव्स कुछ यूनिक एडेप्टेशन रखते हैं. उनके जो रूट्स होते हैं अगर देखा जाए मैनग्रोव्स प्लांट्स में, तो वो रूट्स अबव द सरफेस ग्रो किए होते हैं, ठीक है, ऐसे रूट्स होते हैं, ये अबव द सरफेस ग्रो कर जाते हैं, ऐसे एक स्पेशल रूट्स इनमें डेवलप होता है. और इन रूट्स के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि नीचे तो क्या है, मड से, ठीक है, मैनग्रोव रीजन है तो मडी एरिया है, दलदल है, और जहां भी वाटर सॉइल के जितने पोर्स हैं अगर वाटर से सेचुरेट हो जाए तभी पानी ऊपर सरफेस पर आता है. सॉइल जब तक ड्राई है तो पानी आपको सरफेस पे तो दिखेगा नहीं, ठीक है. तो समर सीजन में आपको क्या दिखता है, सॉइल ड्राई, बट जैसे ही रेनी सीजन आता है, वर्षा होने लगती है, सॉइल के पोर पानी से फिलअप होने लगते हैं, वाटर ऊपर आने लगता है, फिर वाटर इमर्ज कर सरफेस पे आ जाता है, तो खेतों में पानी जमा हो जाता है, ठीक है. तो वो एरिया मार्शी होता है, मडी हो जाता है. तो मार्शी और मडी एरिया में क्या दिखाई देगा कि सॉइल के पोर में ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है. और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का मतलब हो गया एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो गया. एनारोबिक कंडीशंस में बहुत टफ होता है कि रूट्स सर्वाइव करे, या तो वो एडेप्टेड हो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए,
अदरवाइज रूट खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। ठीक है, अब इन्होंने ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या किया कि रूट्स अब ऊपर की तरफ ग्रो कर गए, ऐसे मिट्टी में ऊपर की तरफ। रूट्स अभी तक तो आपने नीचे देखा, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर गए। इन रूट्स के ऊपर पोर्स हैं, इससे ये ऑक्सीजन लेंगे। तो द स्पेशल रूट्स इज यू ऑब्जर्व, ठीक है ना, न्यूमेटोथोड्स कहते हैं इन रूट्स को, एंड द पोर्स आर नोन एज न्यूमेटोपोर्स। So such kind of modifications you find where in the mangroves plants, those who have to survive in the muddy area, marshy zone, marshy area. तो कल के लेक्चर्स में मैं क्या डिस्कस करूंगा, व्हाट इज द मॉडिफिकेशंस वी ऑब्जर्व इन द मेसोफाइट्स, व्हाट आर द मॉडिफिकेशन वी ऑब्जर्व इन द हैलोफाइट्स, एंड व्हाट इज द मॉडिफिकेशन वी ऑब्जर्व इन द ज़ीरोफाइट्स। वैसे लार्जली मैंने मॉडिफिकेशन आपको मॉर्फोलॉजिकल बता ही दिया कि द स्टेम इज ज़ीरोफाइट्स में कि लीफ आर वेरी स्मॉल और इधर एब्सेंट कन्वर्टेड इनटू द हॉर्न, the roots is very long, the stem is thick because water स्टोर करना है। अभी हाइड्रोफाइट्स में हमने सारे एडेप्टेशन देखे कि वाटर को हटाना कैसे है और कम वाटर एब्जॉर्ब करना है, और ज़ीरोफाइट में उल्टा मॉडिफिकेशन देखेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्टोर करे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करे, बचा के रखे, क्योंकि उनको ड्राउट कंडीशन को इवेड करना है। ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन उनमें वैसा ही होता है। मैंने कहा कि यहाँ सरफेस पे स्टोमेटा होगा, ठीक है, वहाँ नीचे होगा पानी बचाने के लिए, तो कई सारे मॉडिफिकेशंस। तो ये ओवरऑल मैं पहले प्लांट को फिनिश करूँगा, फिर एक कंपैरिजन्स हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं एनिमल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। एनिमल्स के बारे में उतना एक्वेटिक एनिमल्स के मॉडिफिकेशंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, और फिर डेजर्टिक मॉडिफिकेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बेसिकली एनिमल्स के केस में हमें तीन को देखना होगा। एक तो एम्फीबियस होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पे भी रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं, वो बड़े यूनिक हैं। तो हमें उनके मॉडिफिकेशन देखने होंगे कि आखिर उनमें ऐसी क्या बात है कि वो वाटर में भी रह ले रहे हैं और लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर रहे हैं। और एक जो कम्प्लीटली एक्वेटिक है कि लैंड के ऊपर आने से सर्वाइव नहीं कर सकता, तो जैसे फिशेस को मैंने कहा, या कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं, वेराइटी ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स जो दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड, और कुछ जो लैंड एनिमल हैं जो टेम्पररी वाटर में जा सकते हैं, जैसे हम सभी कुछ मिनट्स के लिए पानी में जा सकते हैं क्योंकि वी आर नॉट एडेप्टेड टू लिव इन दैट। अदर सम रेप्टाइल्स आर नॉट एडेप्टेड टू लिव, बट उसमें भी कुछ यूनिक रेप्टाइल्स हैं जो एम्फीबियंस नहीं है, रेप्टाइल्स हैं, बट दे कैन सर्वाइव इन वाटर, जैसे क्रोकोडाइल है। तो क्रोकोडाइल को देखोगे कि वाई इट इज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल, बिकॉज ये अपने नेस्ट कहाँ, अभी आपको हैबिटेट भी बताऊंगा कि उसको देखते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कहाँ करता है, ब्रीडिंग कहाँ करता है। रेप्टाइल्स मैं कह रहा हूँ, तो रेप्टाइल्स पानी में भले रहे, जैसे क्रोकोडाइल देखोगे वो अपने अंडे कहाँ देता है, तो वो मड में देता है। वो नेस्ट कहाँ बनाता है, वो किनारे बनाता है, शोर पे बनाता है। ठीक है, और फिर वो पानी में रहता है, तो उसमें अलग एक मॉडिफिकेशन है। कुछ सी स्नेक्स के बारे में सुना होगा, कुछ जो सांप है पानी में रहते हैं, ठीक है ना, दे आर रेप्टाइल्स। उसी तरह टर्टल और टॉर्टोइजेस, दे आर रेप्टाइल्स लिविंग इन वाटर, बट आपने देखा होगा कि वो लैंड पे भी आते हैं, सर मूव करते हैं। तो मॉडिफिकेशंस हमें देखना है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो सरवाइव कर पाते हैं। और मैमल्स में भी आपने देखा होगा व्हेल को, व्हेल कहाँ रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, बट उसके नॉस्ट्रिल देखेंगे वो पानी के ऊपर रहता है, वो बहुत देर तक डाइव नहीं कर सकता, उसे ऊपर आना होगा। ऑब्वियसली ह्यूमन से ज़्यादा देर तक पानी में रह सकता है नीचे, लेकिन उसमें ऊपर आकर उसको क्या करना होगा, ब्रीदिंग करना होगा। वो मैमल है, उसके अंदर गिल्स डेवलप नहीं है, उसके अंदर लंग्स डेवलप है। तो जैसे डॉल्फिन्स मैमल है, ठीक है ना, शोश मैमल है। तो ऐसे बहुत सारे मैमल्स हैं जो एक्वेटिक मॉडिफिकेशन है उनके अंदर भी फिन्स हैं, कॉर्डल फिन्स हैं मूवमेंट के लिए, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, फिशेस की तरह दिखते हैं, बट वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में तो रह रहे हैं, लेकिन उसमें रहने के लिए उन्होंने मॉडिफाई किया, अपने आप को चेंज किया
ठीक है, बट हमसे उनकी बहुत सारी फिजियोलॉजी मिलती है और कुछ उन्होंने अपना यूनिक बनाया जिसके कारण वो वहाँ रह पाते हैं। तो हमें वो डिफरेंसेस देखना है क्योंकि डिफरेंसेस के ऊपर ही क्वेश्चंस होंगे। तो टुमारो आई विल फिनिश दिस टॉपिक, मैं कल इसको फिनिश करूँगा। चलो फिर, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।